pairs of cranial nerves. Fishes and amphibians 10 pairs, and human they are having 12 pairs of cranial nerves. One by one we are going to discuss in detail that what type of cranial nerves do we have and what type of functions they are performing. इसके साथ साथ बेटा आपने ये भी नोट करना है that which type of nerve is sensory in nature, motor in nature और mixed in nature. तो ये next slide पे आपको 12 pairs of cranial nerves ये नजर आ रहे होंगे और उनके functions. This table or flow chart has been taken from your textbook. और ये जो नंबरिंग यूज हो रही होती है ये एक्चुअल इनकी रेफरेंस नंबरिंग भी है. इसी रेफरेंस नंबर से इनका नेम पूछा जा सकता है. दैट फर्स्ट पेयर ऑफ cranial nerves is olfactory. It is sensory in nature and concerned with smell. Second pair of sensory nerve is optic. Optic nerve is also sensory in nature, that is consisting of sensory neuron mainly and is involved in input information. It is concerned with vision. Third is oculomotor. It is primarily motor and it controls the movement of eyelids, eyes, adjustment of light entering eyes, lens focusing. The fourth one is trochlear. Trochlear is primarily motor and is involved with the condition of muscles as well as eye muscles. Fourth one is trigeminal because it is having three further projections. Ophthalmic, related with the eyeball, and it is concerned with the eyes, tear glands, scalp, forehead, and upper eyelids. Second one is maxillary. Maxillary, upper teeth, upper gum, upper lip, and lining of the palate, skin और face को control कर रही होगी. Third division is mandibular. Mandibular refers to the lower jaw. Scalp, skin of jaws, lower teeth, lower gum, and lower lip is controlled by mandibular division. These three divisions they come under trigeminal. The fifth pair of cranial nerves. Sixth one is abducens. It is primarily motor and is concerned with jaws, floor of mouth, and eye muscles. बेटा इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है. ये एक बेटे ने कहा है कि इसमें जूम नहीं करें. एक बेटी ने कहा कि जूम नहीं करें. एक्चुअली ये आपके पास बुक की फॉर्म में मौजूद है. अरीशा तेरी आई एम टेकिंग यू क्वेश्चन एट द एंड. प्लीज थोड़ी देर सुन लीजिए फिर मैं आपके क्वेश्चन बेटा लेता हूँ. स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स. जस्ट वेट प्लीज. The seventh pair of the nerve is facial, and facial is a mixed nerve which is concerned with condition of muscles, taste receptors of the anterior tongue, facial expressions, tear glands, salivary glands उसको ये regulate कर रही होगी. और बेटा नेक्स्ट है हमारे पास vestibulocochlear. Vestibulocochlear it's sensory and having two branches, one concerned with equilibrium and air part vestibule. Second cochlear branch. Cochlear branch is concerned with cochlea, another part of the ear. Okay. Glossopharyngeal. The next part, ninth pair of the nerve, is mixed nerve and is concerned with pharynx, tonsils, posterior tongue, and carotid arteries. And vagus nerve is the 10th pair of cranial nerve, another important nerve. And vagus nerve is concerned with speech, swallowing, as well as heart, slowing down the heart rate. Vagus nerve is concerned with parasympathetic nervous system as well, visceral organs and thorax as well as abdomen. Other parts are esophagus, larynx. Accessory nerve is the 11th pair of cranial nerves. Accessory nerve is having further two branches, cranial branch projecting out from the cranium and spinal branch projecting out from the spinal cord. It is mainly vestibule is Areej Altaf is asking about vestibule. Vestibule is a part of the ear. In next lectures we are going to discuss the structure of ear. वहाँ पे आप vestibule को with diagram समझ लेंगे कि ear का part है बेटे. Accessory is a cranial branch as well as spinal branch. Cranial or spinal branch they are motor in nature and soft palate, pharynx as well as larynx, neck and back. ये accessory है. The last one is hypoglossal. और hypoglossal आप लोग समझते हैं कितनी important nerve है. It is mainly concerned with controlling
टंग मसल्स। तो अल्लाह ताला ने जो 2 गज लंबी जुबान दी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्रीनियल नर्व्स का लास्ट पेयर वो मौजूद होता है। वेल ये फ्लो चार्ट जो आपने देखा पहले, ये फ्लो चार्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अभी हम लास्ट पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पोर्शन, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर का जो पोर्शन था उसमें आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स और क्रेनियल नर्व्स इनकी बात की। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, दैट इज सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में से दोनों का जो फंक्शन है बेटे, पैरासिम्पैथेटिक इज कंसर्न विद रेस्ट, रिलैक्स एंड रुमिनेशन। 3 आर से इसको याद रखा जाता है। ये रेस्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड सिंपैथेटिक इज कंसर्न विद कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ इमरजेंसी सच एज फाइट एंड फ्लाइट। इनको डिटेल से डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम को फोकस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी मसल्स को, सारे के सारे फंक्शंस रेगुलेट कर रहे होंगे उन प्रोसेसेस को जो फैसिलिटेट करें मसल मूवमेंट को और स्लो डाउन करें विजुअल ऑर्गन की एक्टिविटीज को। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसर्न्ड विद रेस्ट एंड रिलैक्स। पैरासिम्पैथेटिक में स्केलेटल मसल्स की तरफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, जबकि विजुअल ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो और उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेशन ऑफ द पीपल, इसका फंक्शन क्या होता है या ये क्यों किया जाता है? बिकॉज प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में रनिंग करते हुए ज्यादा लाइट आइज के अंदर एंटर हो और विजन में आसानी हो, ये फाइट फ्लाइट में चाहिए होता है। जबकि रेस्ट की हालत में, जैसा कि लेक्चर के दौरान या वैसे ही आप लोग ऑलमोस्ट सो रहे होते हैं, तो बेटा उस वक्त पीपल की कंस्ट्रिक्शन लाजमी होती है ताकि नींद अच्छे से आ सके और ये मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करके लाइट की अमाउंट कम से कम आइज के अंदर एंटर करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पे नोट करना है कि स्पाइनल कॉर्ड का वो पोर्शन जो मिडल पार्ट है, जस्ट लुक एट दिस, मिडल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कंट्रोलिंग sympathetic nervous system, while the top portion, upper portion of the spinal cord, including some brain parts, and lower portion of the spinal cord, they are controlling parasympathetic nervous system. Further functions which are required for energy activities or sympathetic activities, saliva की production inhibit हो जाएगी, जबकि रेस्ट के दौरान इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, so that digestion may be facilitated, और इसमें डाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती एकदम से। ब्रोंकाई को रिलैक्स किया जाएगा सिंपैथेटिक में, फाइट फ्लाइट में, जबकि इधर कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ज्यादा ब्रीदिंग, ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज के दौरान, फाइट और फ्लाइट में, दैट्स व्हाई। हार्ट बीट एक्सेलरेट होना, वैसे तो कोई टेस्ट या रिजल्ट भी देख के हो सकती है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट लाजमी इंक्रीज करेगी और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। स्लो डाउन कब होगी हार्ट बीट? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान। पेरिस्टालसिस का इनहिबिट होना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आएगा, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल की तरफ बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जबकि रेस्ट की हालत में, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, तो स्केलेटल मसल की तरफ तो ब्लड फ्लो नहीं होता, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स digestive tract and visceral glands. That's why digestion promote होती है during rest. इसलिए खाना खाने के फौरन बाद एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। वैसे दिल भी नहीं करता क्योंकि हमारे मसल्स रेस्ट चाह रहे होते हैं, उसको मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है, तो खाना खाने के फौरन बाद सुस्ती जो छा जाती है वो इसीलिए होती है बेटे। इसके अलावा बेटे ग्लूकोज रिक्वायरमेंट सिंपैथेटिक में ज्यादा होगी, पैरासिम्पैथेटिक में कम। टाइम कम है, मीटिंग एंड हो रही है, मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन वो उसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन करने हो उसको बेटा आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। जस्ट 1 मिनट, मैं इधर से आपको अभी अलो करता हूँ।